in your previous class, your topic uh, 3 of Russian Revolution, that was the February Revolution in Petrograd. The February Revolution in Petrograd was going on, and I have already discussed about the February Revolution, that it started on 22nd February 1917 with a lockout in industries and on 27th February the workers attacked on police headquarters. The soldiers were not ready to open fire, so on 2nd March Tsar abdicated the throne. That means I have already discussed about the February Revolution, that on 22nd February a lockout took place in right side of the river Neva. It started on 22nd February with a lockout. After that it continued on 23rd, 24th, on 25th February one important event took place. The king or the Tsar Nicholas II suspended the Duma, so political leaders also supported the workers. Then it continued on 26th, and on 27th February the workers became violent and attacked on police headquarters. The king ordered his soldiers to open fire on the strikers or on workers, but they refused to fire on the workers. And on 22nd March, Tsar Nicholas II or the king was forced to abdicate the throne, and with that monarchy was abolished in Russia. After that, a provisional government was formed in Russia. All the groups were the part of provisional government. On 22nd March, Tsar Nicholas II abdicated the throne. With that, Russia, that means monarchy, was abolished in Russia and a provisional government was formed in Russia. All were the members of provisional government except the king or the Tsar. All workers, Soviet, landlords, bankers,
industrialists, politicians, etc. were the part of प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो भी वर्कर्स का अपना सोवियत था, मतलब उनका जो यूनियन था, मतलब वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, लैंडलॉर्ड्स, बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, जो भी थे किंग को छोड़कर जो भी थे वो सब के सब प्रोविजनल गवर्नमेंट के एक पार्ट थे। दैट मीन्स प्रोविजनल गवर्नमेंट मीन्स ए टेम्पररी गवर्नमेंट। A temporary government was established in Russia after the abdication of Tsar। जार को जाने के बाद एक वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और जो भी मोनार्क था उसको छोड़कर सब लोग उसके एक पार्ट थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के एक पार्ट थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए, इन 1900 ए सोशलिस्ट revolutionary party was established in 1900। तो 1900 में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी was established in Russia in 1900, and later on it was divided into Bolsheviks and मेंशेविक्स। और तो जो बोल्शेविक्स थे, their leader was Lenin। Vladimir Lenin was the leader of Bolsheviks, and Lenin was sent to exile during the rule of Tsar Nicholas II। जार निकोलस सेकेंड का जब रूल चल रहा था तो उसी समय जो व्लादिमीर लेनिन थे, जो कि लीडर थे बोल्शेविक्स के, इनको रशिया से निकाल दिया गया था, मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया था। और जो मेंशेविक्स था, इनके ही लीडरशिप में प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ मेंशेविक्स, एंड द लीडर ऑफ बोल्शेविक्स, दैट वाज व्लादिमीर लेनिन, ही वाज सेंट टू एक्साइल ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार निकोलस II। जिस समय जार निकोलस II रूल कर रहा था उसी समय इनको देश से बाहर निकाल दिया गया। और जो मेंशेविक्स था, द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ मेंशेविक्स। अब आइए नेक्स्ट। सो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ मेंशेविक्स in April, that means in April, Vladimir Lenin returned to Russia. When he heard about the establishment of a provisional government in Russia and the end of monarchy in Russia, so he returned to Russia in April 1917। जिस समय लेनिन को पता चला कि मोनार्की खत्म हो गया है, जार निकोलस II अब वहाँ के किंग नहीं है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ऐसी स्थिति में व्लादिमीर लेनिन रशिया वापस आ गए, लौट आए। और वो लौटते ही पुट 3 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। Lenin put 3 demands in front of provisional government. He demanded 3 things. He made Lenin
made three demands from a provisional government. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसके सामने अपना 3 डिमांड्स रख दिए. The first was First World War be brought to close. The first demand was. Second demand was land to the tillers. उनका जो पहला डिमांड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बी ब्राउट टू क्लोज. उनका सेकेंड डिमांड था कि लैंड टू द टीलर्स. और जो थर्ड डिमांड था बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड. Banks to be national demand. And these 3 demands of Lenin from provisional government is famous as April thesis. ये जो 3 डिमांड है ये फेमस है अप्रैल थीसिस के रूप में. जैसे ही लेनिन आए रशिया में अप्रैल में आने के साथ ही 3 डिमांड्स को प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने रख दिए. जो पहला डिमांड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज. सेकेंड डिमांड वाज लैंड टू द टीलर्स और द लैंड टू बी ट्रांसफर टू और द लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स. और थर्ड था बैंक्स टू बी नेशनलाइज. आते के साथ 3 डिमांड रख दिए लेनिन. जो पहला डिमांड था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म किया जाए. और तो रशिया के हाथ में तो था नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कि खत्म कर दे. सेवरल पार्टीज वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट एंड रशिया वॉज जस्ट ए पार्टी इन दैट. In addition to Russia, England, France, then USA, Germany, then Austria-Hungary, Turkey, these powers were also involved in First World War. So it was not possible for Russia to brought First World War to be closed. तो रशिया के लिए सिर्फ संभव नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया जा सके, लेकिन ये चीज़ हो सकता था कि वो वार से बाहर आ जाए, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आ जाए. तो लेनिन का डिमांड वही था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जो रशिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आ जाए. क्योंकि आप लोग याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड इट एंडेड इन 1918. That means it continued for 4 years from 1914 to 1918. And Russian Revolution took place in 1917. That means Russian Revolution took place in between First World War. इसका मतलब यही था कि जो रशियन रिवॉल्यूशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस समय कंटिन्यू हो रहा था उसी समय रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था. तो इसलिए जो लेनिन थे वो डिमांड किए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया बाहर आ जाए. सेकेंड डिमांड वाज लैंड टू द टीलर्स और लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. जो तीसरा जो सेकेंड डिमांड था उनका, जो लेनिन का, वो था कि लैंड टू द टीलर्स. टीलर्स का मतलब होता है जो भी खेत को जोतने वाले होते हैं, जो उसमें मेहनत करते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं. तो जो लैंड था वो मेनली लैंडलॉर्ड्स के पास था या चर्च के पास था या किंग की संपत्ति था. तो इस स्थिति में इनका डिमांड था कि लैंड टू द टीलर्स मतलब लैंड उसी को दे दिया जाए जो उसमें मेहनत कर रहा है, जो उसको जोत रहा है, या फिर लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट मतलब जो किसान है उसी को जमीन दे दिया जाए, जो खेत जोत रहा है उसी को जमीन दे दिया जाए. सेकेंड डिमांड उनका ये था. जो थर्ड डिमांड था बैंक्स टू बी नेशनलाइज. देयर वर नो नेशनल और नेशनलाइज्ड बैंक्स. बैंक्स वेयर प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जो भी बैंक्स था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी.
तो जो तीसरा डिमांड था, बैंक्स टू बी नेशनलाइज, जो बैंक्स है उसको नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए। तो these were three demands made by Lenin in the month of April, so it is famous as April thesis। April thesis के रूप में ये फेमस था। It was not possible for the provisional government to fulfill these all demands। It was not possible for provisional government, it was not possible for provisional government to fulfill these demands, So Lenin with Bolsheviks started protest against provisional government। ये फुलफिल कर पाना प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं था कि तीनों जो डिमांड्स है उसको फुलफिल कर सके। सबसे बड़ा इसके पीछे कारण ये था कि इन प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑल वे इन्वॉल्व। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ब्राउट टू क्लोज इसको चल सकता था। जो सेकेंड डिमांड था, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स और लैंड टू द टीलर, जो खेत जोत रहे हैं उनको लैंड्स को दे दिया जाए, या जो किसान हैं उनको ज़मीन दे दी जाए। ये संभव नहीं था क्योंकि इस चीज़ से जो भी लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग नाखुश हो जाते, एंड दे वेयर पार्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। अगर वो लोग अपना सपोर्ट वापस ले लेते तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाता, गिर जाता। इसलिए लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में जा पाना प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेकेंड डिमांड, दैट वाज लैंड टू द टीलर्स और लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। तीसरा जो डिमांड था, बैंक्स टू बी नेशनलाइज। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, जिनके पास इंडस्ट्रीज थी, जिनके पास में पैसा था, जो कि बैंकर्स थे, दे वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। अगर बैंक्स को उनसे छीनकर नेशनलाइज कर दिया जाता तो जितने भी बैंकर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाते। सो इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं था कि इन डिमांड्स को पूरा कर पाए। सो बोल्शेविक्स अंडर लेनिन दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। मतलब एक तरह से जबरदस्त विरोध शुरू हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट को, एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट फेल्ट इनसिक्योर। उनको लगा कि अब जो हमारा गवर्नमेंट है वो गिर जाएगा, इनसिक्योर हो। सो दे स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द बोल्शेविक्स। जो भी बोल्शेविक्स थे उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना शुरू कर दिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट बोल्शेविक्स। Many Bolsheviks became underground। बहुत सारे जो बोल्शेविक्स थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, वो स्टार्ट कर दिया एक्शन लेना बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में, और जो बहुत सारे बोल्शेविक्स जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। मतलब एक तरह से the Bolshevik started protest against provisional government, and the provisional government started arresting the Bolsheviks। Bolsheviks को अरेस्ट करना शुरू हो गए। That means
द बोल्शेविक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दी। और जो बाकी पार्ट है इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।